हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन है अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, द नोमैथिक एम्पायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11th हिस्ट्री एनसीईआरटी एंड सीबीएसई क्वेश्चंस हियर। But next questions arrive is the most important here. Discuss the early careers of achievement of Genghis Khan. Early careers of achievement and the Genghis Khan here. This is the most important question here. Early career and achievement of the Genghis Khan. This is an important question here. You know that Genghis Khan was a great Mongol. The Genghis Khan is here a great Mongol who led there is a foundation of the Nomadic Empire. He is the founder of Nomadic Empire, the Genghis Khan. Genghis Khan is a great Mongol here. His contribution was the immense is the unify of Mongol. That's important. The contribution was the immense is the unify the Mongol, and it was due to the efforts that was is the Mongol Empire was the established. This is important. And here he was born in the year 1162. He was born in the year 1162, and he was born near the river Onon. There is a river of Onon. This is important. And his father, his name was the Yasuji, who was the chief of the tribe Kyat. He was the chief of tribes Kyat. The name of the Yasuji. This is the father of Genghis Khan here. And his mother here, Aluen K and Gore Kat. That's important. The mother has here Olaluen. Olaluen K. That is important. Belong to the here Agro Gods tribe. This is important. Only great is tribe here. The mother his name here Oluen K. And they belong to their is a tribe society here. Ogo Gat. Gat. His origin name is a Temujin. There is a origin name here Temujin, and he is great of the brave man. This is important. The father name is here Yosugain. Yosugoi, who is the chief of the tribe Kuad. And mother is also important here. There are Olu and K. There belong to the here a tribe society is a Ologariat. And the origin of Temujin. There is Temujin. He grew up to brave man, and he organized a powerful army which helped him to be lay down the foundation of the vast empire. He is organized a powerful army here. His main achievement was the conquest of northern China, conquest
of Kora, Quats, etc. Note that important. During the period from 1290 to the 1222 CE, the Mongol force occupied the Bukhara, Samarkand, and Valk, Mar, and Nishapur and the Harad. That's important. During the period of 1219 to 1222 CE, the Mongol force occupied Bukhara, Samarkand, and Balkh, Mar, and Nishapur and the Harad area. And Genghis not only built was empire but also contribute a lot in the improving their civil administration of the empire. The Genghis is the most important achievement here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और इससे भी महत्वपूर्ण चैप्टर है यावार साम्राज्य। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास 11वीं NCERT CBSE के आधारित है ये। और ये क्वेश्चन जो हमारे समक्ष अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगला क्वेश्चन यही कहता है कि चंगेज़ खान को शुरुआती करियर और उपलब्धियों पर चर्चा करें। चंगेज़ खान की जो है शुरुआती करियर कैसा था, वो कैसी उसने अचीवमेंट अपनी प्राप्त की, तो स्टार्टिंग जो करियर है कैसे उसने शुरुआत किया, तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि चंगेज़ खान की करियर कैसी थी। कहते चंगेज़ खान इतनी महान सैनिकों में गिना जाता है, तो उसके बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। चंगेज़ खान सबसे महान मंगोल था जिसने खनावा साम्राज्य की नींव रखी। देखा जाए तो चंगेज़ खान जो है एक महान मंगोल था और उसने यावार साम्राज्य की नींव रखी। यावार साम्राज्य का नींव रखने का जो है श्रेय चंगेज़ खान को ही जाता है। और चंगेज़ खान का जो ओरिजिनल नेम है तेमुजीन है, और तेमुजीन जो नाम पड़ा इसकी माँ के नाम से पड़ा, ठीक है, माँ की जो है जनजाति थी इसकी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मंगोल को एकजुट करने में उसका योगदान बहुत बड़ा था, इसने सभी मंगोलों को एकजुट कर लिया। उनके प्रयासों से ही विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना होना सक्षम हुआ, क्योंकि चंगेज़ खान का जो है महत्वाकांक्षा था और उसने अपने साम्राज्य को जो है एक विशाल रूप देने में सफल हुआ। उसका जन्म देखा जाए तो उसका जन्म 1162 में हुआ था। उनका जन्म ओनोन नदी के पास हुआ था, और नोन नदी है वहाँ ही पे जो है चंगेज़ खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। उनके पिता का नाम जो था योसुगेई था, जो कि कियात जनजाति के मुखिया थे। कियात जनजाति के जो थे ये मुखिया थे, ठीक है। इनके पिता जो थे योसुगेई, और उनकी माँ देखा जाए तो अलुएन एके एंग्रोगाट जनजाति से थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनकी माँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति एंग्रोगाट की थी, और उनकी माँ का नाम जो था एलुएन एके। उनका मूल्य नाम जो है तेमुजीन था। उनका मूल्य नाम देखा जाए तो तेमुजीन था, और वह एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो है जन्म इतने महत्वपूर्ण स्थानों में, और देखा जाए तो ये कहते हैं एक बहादुर व्यक्ति के रूप में उभरा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का आयोजन किया जिससे उन्हें एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने में मदद मिली। उनकी मुख्य उपलब्धियां उत्तरी चीन के विजय, कारा कोटी की विजय आदि थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो उनके उपलब्धियां कुछ कम नहीं थी। उत्तरी चीनी की विजय होना बहुत बड़ी बात थी। इवन देखा जाए तो कारा कोटी के विजय आदि भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1219 से लेकर 1222 ईस्वी की अवधि के दौरान मंगोल सेनाओं ने बुखारा जो है, समरकंद, बलाक, माव और निसापुर जैसे हेरात पर कब्जा कर लिया, और ये कब्जा काफ़ी चंगेज़ खान के लिए महत्वपूर्ण था, जो कि 1219 से लेकर 1222 की अवधि के दौरान जो है मंगोल सेनाओं ने जो है इन क्षेत्रों पर कब्जा किया, जिसमें बुखारा, समरकंद, बलका, माव और निसापुर हेरात पर कब्जा काफ़ी महत्वपूर्ण था। चंगेज़ खान ने न केवल विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि देखा जाए तो साम्राज्य के नागरिक शासन को भी सुधारने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो यहाँ पर चंगेज़ खान की कैरियर और देखा जाए तो अचीवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम व्यू से ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है,
ठीक है, अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए त्रिपाण संग्र हमेशा क्वेश्चनों की लड़ी लाती है। और ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं होते हैं, स्पेशली खास होते हैं। और इसकी दूसरी खासियत ये होता है कि ये पॉइंट व्यू होता है, और आजकल एग्जामिनर जो है हमेशा पॉइंट व्यू ही देखते हैं और पॉइंट व्यू से ही नंबर देते हैं। तो इसलिए त्रिपाण संग्र आपके लिए हमेशा पॉइंट व्यू लाता है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो शायद प्राप्त न हो पाए। इसलिए दोस्तों, शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आप त्रिपाण संग्र की मदद कर सकती हो, क्योंकि आप ही एक माध्यम हो, आप ही एक ऐसे साथी हो जिससे मैं ये बात बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ कि त्रिपाण संग्र को जो है, जो मकसद है कि हर बच्चों को सही ज्ञान, सही बातों का जो है इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आप ही कर सकती हो। और इसको करने में संकोच न कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं गलत, सब आपकी भलाई के लिए है और आपके लिए शब्द है। ठीक है, यहाँ पर कोई गलत काम नहीं है, सब सत्य पर आधारित है, किताबी बात है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर ना किसी धर्म के रिगार्डिंग कुछ बोला जाता है, ना कुछ कहा जाता है। यहाँ पर जो है किताब में वही बात आपको समझाई जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर करने की भावना रखिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त समय समय पर होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है समय समय पर आपको त्रिपाण संग्र द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, और इससे काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण संग्र 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है। तो ये सब प्लेलिस्ट में आपको बेखूबी मिल जाएगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण संग्र को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।